हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप इस वीडियो में पाएंगे संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इसके अंदर आपको क्राइम चैप्टर से लेकर माय एल्डर ब्रदर तक क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई ए लिटल और शुड यू क्राई ए लॉट? वो पोएट क्या बोलता है कि हमको थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द पोएट, यू शुड क्राई लॉट, ए लॉट। वट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट? अब क्या करेंगे आप ज़्यादा रोएंगे तो? आफ्टर क्राइंग ए लॉट यू कैन लाफ हार्टली। तो अब आप बहुत ज़्यादा रोएंगे तो आप फिर बहुत ज़ोर से हंसेगा। रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इज मूड, हैप्पी, सैड, एंग्री, jealous, upset. In the last few lines, the mood of the poet has changed. What is it now? Very happy, angry, cheerful and jealous. चला इसका आंसर बोलते हैं। सैड, वेरी हैप्पी, ये दोनों रहना है। सैड होना है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। Are these sentences right or wrong? The poet says must not cry much. The poet said that you should cry till your pillow is soaked. ये सही है। The poet said that after crying you should open window and laugh. So ये सही है। That people will see that you are happy. The poet said that you should open the window and show people that you are crying. ये तो गलत है। ये कहा बोलता है पोएट कि सबको दिखाओ कि न मैं रो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Where do you cry? What are the things that make you cry? I cry before my mother. I cry when my sister disturbs my or when I fall down and get hurt. ये 2 है। ये लेट्स टॉक का है 2। Can you cry when you are happy? No, not at all. Which are the things that make you happy? In what way do you show your happiness? Attending parties, purchasing new dresses make me happy. I show my happiness by laugh loudly and jumping on my bed. The word happiness ends in ness. The end comes from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which word do they came from? First का clearness, clever. और इसका usually ये होगा, इसका जॉइंट है। इसका नीट होगा, नीटनेस। चलिए अब हम करते हैं लेफ्ट साइड। दोस्तों, हमने बोला था हम आपको माय एल्डर ब्रदर का भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ये देख लीजिए, आपको इसमें ज़्यादा नहीं है, इसका अंदर बहुत कम है। चलिए हम पढ़ाते हैं। Let's write. Fill in the blanks with the exact feeling word. इतना बड़ा है ना? हाँ चल, तभी हम बताते हैं। The tourists were to see the beautiful Taj Mahal. क्या amazed हुआ?
The lights went out suddenly. I was alone and क्या frightened. अबे अच्छे से ऑप्शन दिए। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना था, देख लीजिए। जो आपको पहले मिल जाते हैं, जो सबसे अलग होता है ना, आप उसको देखिएगा। चलो हम इसको छिपा देते हैं, तब भी हम चलिए हम उस पर नहीं देखेंगे, तब भी मैं बता सकता हूँ। He was been third का He was been in ill for a long time and his partner here worried. देखिए दो अलग अलग पहले नहीं आए थे, अभी आए, नए नए आए हैं। इसमें पहले वाला होगा। This sparkle was when he saw his wide open with all his money using। ये पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, शॉक्ड हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं माई एल्डर ब्रदर। तो आपको दोस्तों, अगर आपको एल्डर का मीनिंग मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। माई एल्डर का मतलब बड़ा, इसका है माई एल्डर ब्रदर मतलब मेरा बड़ा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज फन। What are the things that Munna like to do? Munna like to play games and fly kites. He also like to draw a picture of bird and animals. What did Bhaiya do all day? Bhaiya stood all day. Sometimes he read books and sometimes wrote the same word and sentence several times in order to learn them. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made from him? It was because Munna loved to play, but there was no scope for it in the timetable. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? Munna felt disappointed. Bhaiya was so strict with him because Munna was playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball, etc. Whose character do you like more, Munna or Bhaiya? I like Bhaiya character more than Munna because he was a dutiful boy. दोस्तों आप ये भी बोल सकते हैं, बोल देता हूँ। Bhaiya was dutiful। ये नहीं बोलना, ये भैया का तो यहाँ में मुन्ना होता। He was a dutiful boy and knew his responsibility towards his younger brother. He also gave much importance to his father had earned money. Let's talk. हम आपसे भी बात कर रहे हैं, तभी हो गया। Do you have a timetable at school? How many periods are there for following subject and activities on week? दोस्तों ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको आंसर दे देते हैं। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। इंग्लिश 6, हिंदी 5, मैथमेटिक्स 5, साइंस 4, सोशल स्टडीज 4, गेम्स 2, आर्ट क्राफ्ट 1, music 1, डांस 1, एनी अदर एक्टिविटी। चलो हम आगे का पढ़ते हैं। दोस्तों आज हम आपको ये पूरा 2 चैप्टर करा देंगे। अगर आपको कुछ और भी चाहिएगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला ही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे चाहते हैं ना, ये इसका कोई जरूरत नहीं, ये स्कूल में बोलता है पर इसका कोई ज़रूरत नहीं रहता है। लेटर लिखो, ये रहा। हाँ इसका काम रहता है दोस्तों, इसका काम रहता है। ये ओलिवर का है, ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ओलिवर को कहते हैं। Why did Oliver live in the orphanage? Oliver lived in the orphanage because he had no home.
Who was Mr. Bumble? He was the owner of the orphan that mill where the boys they were given only a bowl watery soup. What did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver said to Mr. Bumble that he wanted some more soup. प्लीज़ दोस्तों आप हमको लाइक कर दीजिएगा, हमको बड़ी मेहनत लगती है ये सारी वीडियो बनाने में, पर आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। दोस्तों अगर आपने लाइक कर दिया तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन भी मिलता है SUB सब्सक्राइब है दोस्तों, इसके बगल में एक बेल आइकन मिलता है, आप प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। आप अगर आपने ये कर दिया तो आप के लिए हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो लेके आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द बॉयज गिवन 3 meals a day. When why were they always hungry? Because the soup they were given was never enjoyed. Because they worked very hard all day long. Because the older boys drank up their soup. इसका फर्स्ट होगा बिकॉज द सूप दे वेयर गिवन वाज नेवर एंजॉय। चलो आगे का पढ़ते हैं, देख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिवन द सेम एज वेरी हंग्री। ऑप्शन है वेरी हंग्री पारा 2, टू वेनिश पारा 3। फर्स्ट का स्टार्विंग, सेकंड का डिसा परपरेट। डिसा आपको बोल दो डिसा पीरियड। All the boys assembled in the cold stone hall here. The word assembled means moved away, collected, worked together. चलिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इसका होगा आंसर कलेक्टेड। चलिए हम पढ़ते हैं, इसका आंसर कलेक्टेड है। फ्रॉम द वर्ड assembled, remove the last 2 letters, add one letter to make a word, which means a time at school when the whole school gathers assembled। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे है assembled, तो आप यहाँ पे लिखते नहीं L, यहाँ पे L नहीं, ED आप लिखा है, तो ED को हमने हटा दिया, फिर उसके बदले हमने Y लगा दिया, असेंबली हो जाएगा। फिर असेंबली जिससे जहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। गिव ए स्टेबल टाइटल टू द पैसेज। ओलिवर और प्रिंस। लेट्स राइट, आपको लिखना है। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और द गिवन नॉलेज। To teach means show the how to explain. Complete the following sentence using the correct from teach of learn teach learn। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा। फर्स्ट का टीच, सेकंड का आप लिखते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट का टीच, सेकंड का टीचर्स, थर्ड का लर्नड, और ये फोर्थ का थॉट, फिफ्थ का लर्नड, और ये सिक्स्थ का वो भी लर्नड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। दोस्तों आप ये खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रामर से संबंधित है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। हम ये आखिरी करते हैं। Read the following sentence. भैया was been study in the same class for 2 years. For a period of time, Munna was flying kites since the morning, from a time in the past till the present। चलिए आगे करते हैं। इसके अंदर आपको for और since लगाना है।
have lived in this house I was a baby. Since the big jar has been in your family many years. तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जहाँ पे सही टाइम में दिया रहता है ना, सही टाइम, जैसे कि अभी हम आए हैं अपने ये वीडियो, जैसे कि मान लेते हैं हम ये आए हैं 12 बजे, करेक्ट 12 बजे हम एक नए घर में गए हैं और इसका लिखा है आई एम गोइंग टू ए न्यू हाउस फॉर करेक्ट फॉर नहीं ऐसे कोई पैराग्राफ लिख दे। मैं यहाँ पे 12 बजे आया हूँ, 12 एकदम करेक्ट 12 बजे लिख देगा, फिर आप जान जाइएगा उसमें सिंस लगने का है। द बिग जार हैज बीन, ये तो मैंने कर दिया था। द ओल्ड banyan tree in the village has been there the last 200 years. Nobody has been him yesterday. Since for since. सिंपल। चलो हाँ, हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हाँ।